may please change the slide. Basically, COVID-19. Actually, COVID virus was not, it's like suddenly developed. It has been there in the environment from the past 10 or 20 years. We have been studying as an MBBS student in our books, but it was like a small topic which usually has to happen. कि what is coronavirus हम पढ़ते थे, our teachers used to ask. See, basically, there is nothing like you should be scared of COVID 19. First of all, I would really like to say this thing that there is no one has to scare for COVID 19. You don't have to scare. Okay? So, let's start. What is COVID? See, right now, everyone is thinking that COVID is only a respiratory disease. It is totally a myth now because day by day, when we see the people coming to us with their problems, with their test reports, we have seen in the past few weeks, few months rather, that it is not only a respiratory disease. It's a multi-system diseases involving many of your organs, many of your systems, which goes under the inflammation. Inflammation का मतलब मैं बताऊं हमारे बॉडी के जो organs हैं वो सूज जाते हैं, ठीक है. इस वजह से कोविड की डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज द थिंग, people are getting so ill. Why? Because despite of the continual denial of the government, from the doctors, don't hide your symptoms, just show to them, just consult to your doctor, consult to your family physician, consult to anyone which whom you trust. People are not doing that. People think it's okay, it is okay, ये तो हो जा रहा है, ये तो हो जा रहा है. It's not like that. At this point of time, if you are getting your body temperature more than 99.4, then I think you should consult your physician. You should consult any of your family doctor, any of your doctor whom you trust. Maybe it of any branch. I'm not saying to consult to your general physician only. As from the past 12 months, past year, not only the general physicians or the pulmonologist, but each and every member of the doctor, each and every specialist, each and every MBBS student, each and every graduate, undergraduate, and the postgraduate branch of the us is dealing with COVID. So it's my humble request. There is no harm if you're asking from a gynecologist that I'm getting this much of fever right now. What should I do? Which test I should go under? It's my humble request to please consult your physician, to your doctor, or to the person whom you trust and who has the basic knowledge of this. Just be aware of tracking your symptoms. If you're having a bit sore throat, dryness also, any of the symptom you think that it's happening with me, don't think कि आज मैंने नींबू पानी पी लिया था इस वजह से तो नहीं हो गया था. Take that symptom as an alarming symptom. Prepare your body, prepare your mind. I should say keep tracking your symptoms. And it's not like कि उसकी COVID report negative आई है, our RT-PCR is negative, so we are COVID. See, first of all, जब rapid test आया था, we used to say that rapid test gives us false negative 50%. मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ. इसका मतलब था कि जब हम बोलते थे कि rapid test negative आया है, इसका मतलब था कि जब हम रैपिड टेस्ट पे पेशेंट का टेस्ट करते थे, अगर पेशेंट पॉजिटिव आया है तो डेफिनेटली पेशेंट कोविड है, और अगर पेशेंट नेगेटिव आया है तो हम उसको सजेस्ट करते थे कि आप RT-PCR के लिए जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इसने आपकी रिपोर्ट गलत बताई हो. सेम इज हैपनिंग नाउ विद RT-PCR. RT-PCR अप्रोक्सीमेटली 20% फॉल्स नेगेटिव दे रहा है. कुछ ऐसे स्ट्रेन्स आए हैं कोविड वायरस के, कोरोना वायरस के, जो हमारे RT-PCR को स्किप कर पा रहे हैं. इसीलिए जो लोग RT-PCR के लिए वेट करते हैं, उनका नेगेटिव आता है, वो ये सोचते हैं कि हमें कोविड नहीं है. ठीक है, प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए. कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि 20% ऑफ द टेस्ट आर कमिंग फॉल्स नेगेटिव, यानी कि पेशेंट को कोरोना होगा लेकिन पेशेंट का जो RT-PCR है वो नेगेटिव दिखाएगा. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. देन इज लेट एक्शन. Actually, the disease is being divided into two phases. First 6 days and the next 6 days. कोरोना वायरस का हमने इस वक्त जो देखा है फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स जो डेथ्स हो रही हैं,
जो चीजें हो रही हैं वो अगर मैं देखूं तो वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो डिजीज है जो डॉक्टर्स ने बताया है वो 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। जो हमारे डे 1 से डे 6 तक होता है वो बेसिकली आपके सिम्टम्स होते हैं, जो आपका फीवर आता है, जो आपको कफ होता है, सोर थ्रोट होता है, लूज मोशंस होते हैं, ये हेडेक होता है, जो ये सिम्टम्स हैं। फिर क्या करते हैं, पीपल थिंक कि हमारे फर्स्ट 6 डेज इजी हैं तो हमारे नेक्स्ट 6 डेज भी इजी होंगे। रादर आई से कि ये जो फर्स्ट 6 डेज होते हैं इसमें जो वायरस होता है वो सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सिस्टम को, यानी कि आपके जो लंग्स हैं, आपका जो ट्रैकिया है, आपका थ्रोट है, नोज है, इसको अफेक्ट करता है। लेकिन जो नेक्स्ट 6 डेज होंगे फ्रॉम डे 6 टू डे 12, यू शुड बी मोर कॉशियस अबाउट दैट। आपको उस टाइम पे बहुत सोच समझ के चीजें करनी है। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि कोविड डे 6 से डे 12 हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि फर्स्ट 6 डेज आराम से निकल गए। लोगों की हालत हम सुनते हैं, आपने भी सुना होगा आसपास रिलेटिव्स कॉल, यू माइट बी गेटिंग कॉल्स, यू माइट बी सीइंग द केसेस अराउंड यू कि पता नहीं पहले तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया। 6-7 दिन तो इसने अच्छे निकाले थे। वो 6-7 दिन इसलिए अच्छे निकाले थे बिकॉज तब कोविड सिर्फ और सिर्फ आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था। तब आप अच्छे रहते थे, तब आप अपना फीवर भी दिन में 3-4 बार चेक करते थे, तब आप अपना SpO2 लेवल्स भी चेक करते थे, अपनी बॉडी के साथ सब चीजें अच्छी अच्छी करते थे। जब आप ये देखते थे कि 6-7 दिन मेरे अच्छे से निकल गए, उसके बाद ना यू सडनली पता नहीं, आधे लोग तो कहते हैं हमें पता नहीं चलता हमारा पल्स ऑक्स कहाँ पड़े 7th। दैट इज नॉट द थिंग। यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि प्लीज 7th डे भी आपके लिए उतना ही क्रूशियल है, 12th डे भी उतना ही क्रूशियल है जितना आपका फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे क्रूशियल था। You should track yourself once you get any symptom for the next 12 days. Please change this slide, sir. See, today I have already covered the disease. I have not covered, but in today's section, we are going to see how to prevent, what is the pattern of the disease, which I have slightly now shared with you, कि 2 phases में आता है, and what's the recovery. Please change the slide. Prevention. लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने, रिसर्च ने ये बताया था कि बेसिक हाइजीन मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, कीप रिपीटिंग, कीप वॉशिंग योर हैंड्स। दिस मस्ट बी डूइंग। इसमें एक चीज मैं एक्स्ट्रा और ऐड करूंगी, जो अब नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, rather than wearing I think N95 mask or K95, I'll suggest all of you to go with the double masking. See, double masking is humid environment में आगे आने वाले टाइम में, जून, जुलाई, अगस्त, I know it will be difficult for all of you. All of you, it will be difficult for me also to go in such a humid environment with double mask. But trust me that double masking is like inner surgical and outer cloth mask. That will provide you protection about 85 to 90%. If you have seen the WhatsApps or social medias from the past 2 days, the doctors has been saying very frequently that the COVID virus everywhere now. There is no place to hide yourself. There is no place to get isolated. It's being in the air. Third cycle, third phase of the virus can start anytime, anywhere. So that is the basic thing. Keep yourself very protected. Wear double mask. I want to say कि अगर आपको अपने क्लॉथ मास्क की भी अगर आपको देखना है ना वो कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा काम नहीं करता है, here I have also mentioned it कि आप उस मास्क को ना अंडर टैप वाटर रख लीजिए। अगर टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर उसको पार कर रहा है ना मास्क को, दैट मास्क इज नॉट इफेक्टिव। Put your surgical mask under the tap water, put your cloth mask under the tap water. Compare both the masks, then you will realize, yes, that surgical mask, why it is effective than cloth mask. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि आप क्लॉथ मास्क को और सर्जिकल मास्क को, अंदर सर्जिकल, बाहर क्लॉथ मास्क, और एक N95 या K95 को रख के देख लीजिए। आप देखेंगे कि जो टैप वाटर है ना वो N95 K95 से ज्यादा तेजी से निकल रहा है rather than that.
क्लॉथ मास्क में लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस तरीके का क्लॉथ यूज करें. तो द क्लॉथ शुड बी यूज कॉटन is the best cloth which you will use because गर्मियां भी आ रही हैं. You will be feel dehydrated, आपको गर्मी लगेगी, पसीने लगेंगे जब आप बाहर जाएंगे. तो आपकी ना ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार थोड़ी देर उतार देते हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे जीने से क्या फायदा. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. तो rather than going for the hard fabric, go for the normal fabric cotton. और ये देखा गया एक्चुअली कि रिसर्चर्स ने बताया अगर हम कॉटन मास्क लगा रहे हैं यूजिंग द कॉटन क्लोथ तो वो इक्वली और अच्छा इफेक्टिव दे रहा है बिकॉज लोग उसे उतार नहीं रहे. पीपल आर नॉट टेकिंग आउट द मास्क, पीपल आर नॉट रिमूविंग द मास्क बिकॉज दे फील यस दैट कॉटन ही है, हम झेल लेंगे. बट इफ वी आर यूजिंग अनदर फैब्रिक्स ना, लोग उसको उतार रहे हैं कि यार नायलॉन इस टाइम पे यूज नहीं हो रहा, बॉडी पे ही नहीं पहना जाता, मुंह पे थोड़ी ना लगा लेंगे. सो इट इज द थिंग. अगर आप टैप वाटर के अंदर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक और टेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने दोनों मास्क को ना लाइट के पास रखिए. अगर लाइट जिसमें से अच्छी तरह ट्रांसमिट हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो मास्क उतना इफेक्टिव नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज चेंज दी स्लाइड सर. सी, chances of infection indoor are more than outdoor. Why? Because first of all धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही है, AC चलेंगे. What is happening when we use air conditioners? We just close our doors. Our rooms get locked. There is no ventilation. The air inside only gets circulated. You don't know who is infected in nearby your area. So that will be circulating in your air. The virus will be circulating in your home air. You might get infected. आप बाहर जा रहे हो, बाहर आप मास्क से प्रोटेक्टेड हो रहे हो. You are not getting protected by mask inside your houses. So this should be you should keep in your mind कि अगर आप AC भी चला रहे हो तो प्लीज आई शुड सजेस्ट कि 10-20 मिनट से ज्यादा मत चलाओ. थोड़ी थोड़ी देर में चला लो. दैट विल बी इफेक्टिव. उससे आपके रूम का, आपके घर का वेंटिलेशन भी मेंटेन रहेगा. बिकॉज क्रॉस वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घरों की एयर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहे. ठीक है, दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. स्टे फुल, नो डाइटिंग, ईट हेल्दी. आई विल सजेस्ट कि प्लीज स्टॉप डाइटिंग एट दिस मोमेंट. प्लीज, आप लोग ये सोचोगे कि हाई वेट बढ़ जाएगा, वो भी तो नुकसान है, उससे भी तो इम्यूनिटी कम होती है, कोविड हो गया तो. स्टॉप थिंकिंग दैट. आप जिम नहीं जा पा रहे हो ना, मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी कि आप घर पे रह के क्या कर सकते हो. ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल इन बोथ द वेज. बट स्टॉप डाइटिंग, स्टॉप स्किपिंग योर मील्स. प्लीज स्किप मत करो मील्स. डॉक्टर्स पहले भी बोलते थे, डॉक्टर्स अब भी बोल रहे हैं, जिंदगी भर डॉक्टर चिल्ला कर पागल हो जाएंगे कि मील मत स्किप करो. क्या हो जाएगा, एक टाइम खा लोगे तो कुछ हो जाएगा? नहीं होगा. पर नहीं खाओगे ना तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी. और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं. रिगार्डिंग योर फूड, आई एम नॉट सेइंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम. ये मैं आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए बता रही हूँ कि स्टॉप डाइटिंग, ईट हेल्दी, योर बॉडी विल गेट हेल्दी. बट इफ यू विल नॉट ईट हेल्दी ना, योर बॉडी विल धीरे धीरे आप पतले होते जाओगे पर आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी. So this thing you should always keep in your mind. Then is your care for lungs. This Alom Vilom Kapalbhati, this should be done by each and every person. Not only the people who are having symptoms or who are going through COVID should do, but each and every person should do these things. See, Alom Vilom Kapalbhati का क्या फंक्शन है मैं आपको बताती हूँ. हमारे लंग्स में ना, हमारे जब लंग्स एयर अंदर जाती है तो हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं. बेसिकली जो पतले लोग हैं आप उसमें देख सकते हो कि जब वो सांस भरेंगे ना डीपली, जब वो डीप सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, तो उनके लंग्स एक्सपैंड करते हुए आप देख सकते हैं. ठीक है, फिर जब वो सांस छोड़ेंगे तो वो एक्सपेंशन नहीं करेंगे, वो वापस आएंगे. ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन. कोविड, दैट इज द बेसिक रिकॉइल जिसे हम बोलते हैं, है ना. एक रबड़ बैंड को खींचा, उसको वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन में ले आए. अब कोविड में क्या होता है, जो वायरस है वो अंदर ना सिक्रीशंस क्रिएट करते हैं हमारी उसकी.
तो वो क्या है, वो लंग्स की रिकॉइलिंग कैपेसिटी को खत्म करता है। इंसान अंदर एयर तो उतनी ले रहा है लेकिन उसका लंग एक्सपैंड ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसकी बॉडी है जो है वो ऑक्सीजन वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है। तो फिर फायदा क्या होगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो अनुलोम विलोम एंड कपाल भारती आर बेसिकली द थिंग्स which increases your recoiling capacity of the lung. This should be done by each and every person. Not only the COVID, not only the people who got COVID, but each and every person should do this. Next thing I should say, cobra pose. You can search on net, or those people who know yoga, they know the cobra pose. Cobra pose भी chest expansion में help करता है, तो वो भी lungs की recoiling capacity बढ़ाता है। ठीक है? These are the three main asanas which should be done by each and every person. No matter, I am again saying, no matter you are COVID, you are being COVID or not being COVID. Even a small member of your family has to do this. Make sure he or she do. आप करोगे, your grandchildren, your children will definitely do that. They will get interest. And जो लोग कोविड नहीं है जिनको, वो दिन में 2 बार करें। जिन लोगों को कोविड है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, घर में उनसे कोई काम नहीं करवाएगा, उन्हें एक तरफ बिठा दिया जाएगा, चाहे मास्क पहन के चाहे बिना मास्क के, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा एक तरीके से, राइट? दे वोंट बी डूइंग एनी वर्क, दे हैव टू जस्ट सिट ऑन द बेड। तो वो अपना ना 1-1 घंटे का अलार्म लगाएं, मैं 1-1 घंटे का अलार्म लगाएं और 1 घंटे के बाद 15 मिनट का टाइमर लगाएं। उस 15 मिनट के टाइमर में यू हैव टू डू दी कपाल भारती फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स अनुलोम विलोम एंड 5 मिनट्स कोबरा पोज फ्रॉम द डे 1 यू गेट सिम्टम। उससे क्या होगा ना, योर लंग्स रिकॉइलिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। सी, मैं जहां तक जानती हूँ, ऑल ऑफ अस हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम भूल चुके हैं, हम जिम चले जाते हैं अगर जानना होता है तो, बट हम लोग ना अपनी कोई चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। हमारी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई है कि हम जिम जाते हैं, वेट मेंटेन करते हैं, पर हम लोग अपने बॉडी की तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं देते हैं। तो बेसिकली दिस टाइम जस्ट मैं पहले भी बोलती थी, अब भी बोल रही हूँ कि ये वो टाइम है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जिया करते थे। टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर माइंड हेल्दी। दूसरी चीज मैं प्रिवेंशन में ना एक मेंशन करना चाहूंगी, स्टॉप सीइंग द यूट्यूब वीडियोस अननेसेसरी, स्टॉप सीइंग द न्यूज अननेसेसरी। जितनी न्यूज चाहिए ना उतनी ही देखो। बेसिकली दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव एनवायरनमेंट इन योर हाउस। बहुत मोनोटोनस से दिन जा रहे हैं। सी, बीइंग अ डॉक्टर और जो लोग भी एनजीओ से एसोसिएटेड हैं, हम लोगों का ना ये काम है, हम लोगों का ये काम है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। दैट इज आवर वर्क, दैट इज आवर मॉरल ड्यूटी। पर इफ दैट इज नॉट योर वर्क एंड दैट इज नॉट योर मॉरल ड्यूटी ना, डोंट स्पॉइल द एरा और एनवायरनमेंट ऑफ योर हाउस, डोंट स्पॉइल द ऑरा ऑफ योर हाउस। कीप योर हाउस पॉजिटिव as you can, because if you get positive, your mental health is strong. When your mental health is strong, now your physical health gets 10 times stronger. But if your mental health is weak, no matter how much your physical health is good, your physical health will deteriorate. Keep yourself mentally healthy. Stop receiving unnecessary phone calls कि आज मेरे इस रिलेटिव के साथ ये हो गया। अरे हो गया तो हो गया, what can I do? आप कुछ कर सकते हो? Can you revive the person? Just tell me this thing. आप में से कोई कुछ नहीं कर सकता है। No one of you can do it. Stop receiving. See, being a doctor ना, I live in a joint family. ठीक है, मैं आपको मेरे घर का माहौल बताती हूँ। I literally live in a joint family. मेरे घर पे ना इतने कॉल्स आते हैं। From the past 2 days ना, we have just removed that negativity. और ना मेरे घर का माहौल थोड़ा बहुत अच्छा होना शुरू हुआ है। Because we have stopped receiving the unnecessary phone calls from here and there. We are seeing the motivating videos. We are listening to songs, watching movies. We are not putting the monotonous aura in our home. When you stop putting the monotonous aura in your home now, your environment gets positive, your health gets very, very good. Next thing I should say, your willpower should be strong.
कीप योर विल पावर स्ट्रॉन्ग. इस उस फेज में नहीं जाना है. कहीं कहो कि डॉक्टर साक्षी ने बोला विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस होश में आ जाओ कि हमें कोरोना नहीं हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट, प्लीज. मेरे कहने का विल पावर का मतलब है कि अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि अगर कल को कुछ होता भी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. आपको कोविड होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. यू माइट बी नीडिंग एन ऑक्सीजन सिलेंडर, you might be going through this time, you have to go through this time. टाइम है, पास होगा, निकलेगा. एवरीथिंग टर्न्स टू बी गुड. if things are turning bad, things will turn good also. ठीक है. हम बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना, माय मदर ऑलवेज सेज बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा. अच्छा वक्त था ना अब तक, तो बुरा वक्त आया है ना, अब झेल इसको. तो दिस इज द बेसिक थिंग. ठीक है. अच्छा बुरा वक्त था, बुरा वक्त है, इट विल पास ऑन. गुड टाइम हैज टू कम. After every night there is a day, so after every bad time there will be a good time. So stop thinking negative things. Mind में मत आओ. See होता है, I can also feel that. मैं उस anxiety से भी जाती हूँ. There is nothing harm in this. Keep yourself positive. Next is vaccine. See, many people have been asking me very frequently कि वैक्सीन से तो कुछ हो नहीं रहा, वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है. मैंने उसको पूछा था, मेरे उस रिलेटिव ने तो वैक्सीन की दोनों डोज ले ली, फिर भी उसकी डेथ हो गई. ऐसा क्यों? आपको मैं बता दूं, देयर इज द बिगेस्ट सीटी स्कैन सेंटर इन महाराष्ट्र. हिज हेड डॉक्टर, ही इज ऑल्सो अ रेडियोलॉजिस्ट. अभी 2 दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया कि इन पास्ट 10 days he got more than 25,000 CT scans done. CT chest only done. And then he said when his colleagues and when his supporters have asked the patients who were coming for the CT scan, are you vaccinated or not? So he said that 90% of the public which came to him was not vaccinated with even a single dose of Covaxin or Covishield. So their score was above 15. CT scan score आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि 0 से 8 स्कोर माइल्ड डिजीज, 8 to 15 मॉडरेट डिजीज, 15 से ऊपर सीवियर डिजीज. सारा दिन न्यूज में भी यही आता रहता है, व्हाट्सएप पे भी यही चलता रहता है, हर जगह. सो बेसिकली ही टोल्ड इन दिस कि उन्होंने बताया 90% ऑफ द पीपल वर नॉट वैक्सीनेटेड विद इवन अ सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देन ही सेड कि and they were almost having the severe disease, severe score more than 15. Then he said that 5% of the population, 5 to 6% of the population were having the moderate disease. The score was lying between 9 to 13 mainly, and they were vaccinated with a single dose of the Covishield or Covaxin. Then after that he said the public which were having the mild disease and the score was usually 1 or 3, they were vaccinated with both the doses of both the shots of the vaccine, and the second shot was around 1 week or 2 weeks ago. So are you getting my point? Why the vaccine is important? Why it is important? Because yes, see, हम लोगों ने सबने बचपन में BCG लगवाया है. BCG is for what? Tuberculosis. क्या उसके बाद भी TB नहीं होता है? होता है ना. बट बेसिकली उसके सिम्टम्स या उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वो बच जाते हैं. ठीक है. इसी तरह कोरोना वायरस के लिए जो हम वैक्सीन दे रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसके बाद हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको कोरोना नहीं होगा या आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको सब करना है, लेकिन उसके बाद जो आपके डिजीज आपको होगी दैट विल बी फ्रॉम माइल्ड. और अगर आपको कोई कोमॉर्बिड डिजीज है, लाइक आपको शुगर है, बीपी है, या आपकी एज है, ठीक है, तो आपका थोड़ा बहुत मॉडरेट की तरफ चला जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इज पीपल आर आस्किंग डेली के हु कैन टेक वैक्सीन और हु कैन नॉट टेक वैक्सीन. किसी ने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे ये चला दिया था कि गर्ल्स हु आर मेंस्ट्रुएटिंग डजंट हैव टू टेक द वैक्सीन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन. ऐसा कुछ नहीं है गाइस.
there is no relation set between during the कि there is evidence कि menstruation cycle पे during menstrual days अगर आप वैक्सीन लोगे तो आपको कोरोना हो जाएगा या आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी. There is nothing like that. Secondly, yes, people are saying जिनको डायबिटीज है, बीपी है, उनको वैक्सीन नहीं लेनी. No, जिनको डायबिटीज, बीपी है या कुछ भी कोमॉर्बिड है, इवन थायराइड भी है, उनको तो सबसे पहले लेनी है. Because they are higher risk of getting coronavirus, so they have to take the vaccine first. Then people are saying who cannot take the vaccine. वैक्सीन सिर्फ वो नहीं ले सकती लेडीज जो प्रेग्नेंट है या लेडीज जो फीड करनी है बेबीज को. if you have a baby and if you want to feed, then please don't go for vaccine because it won't harm you, it won't harm your baby. then the thing is कि आप अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो आपको कितने दिन पहले छोड़ना चाहिए. See, it's up to you, आपको कितने दिन पहले छोड़ना चाहिए अपने बेबी का ब्रेस्ट फीड. अगर आपको आज वैक्सीन लगवानी है, आप कल रात भी छोड़ सकते हैं, लास्ट फीड देने के बाद भी जा सकते हैं वैक्सीन लगवाने. लेकिन वैक्सीन लगवा कर आने के बाद आप अपने बेबी को फीड नहीं कर सकते. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. देन पीपल आर आस्किंग कि यार गवर्नमेंट ना सबके लिए क्यों नहीं खोल देती है, 18 to 45 ही क्यों रखा है एज लिमिट. बिकॉज अंडर 18 कोई ट्रायल नहीं हुआ है. देयर इज नो एविडेंस बिकॉज कोई एमबीबीएस डॉक्टर, कोई अंडर ग्रेजुएट या कोई हेल्थ केयर वर्कर या कोई फ्रंटलाइन वॉरियर अंडर 18 अपॉइंट ही नहीं होता है. तो अंडर 18 कोई ट्रायल ही नहीं हुआ है, इसीलिए अंडर 18 को वैक्सीन नहीं दे रहे हम लोग फिलहाल. ओके, दिस वाज रिगार्डिंग वैक्सीन. एक चीज और बोलना चाहूंगी कि वैक्सीन से पहले लोगों ने पूछा व्हाट शुड बी द बिफोर एंड आफ्टर मील. बिफोर मील, ड्यूरिंग द वैक्सीन, आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो, आई शुड सजेस्ट एंड इट इज बीइंग देयर. मैंने खुद ये करा है, अपनी फैमिली में सबको करवाया है कि हेवी मील लेकर गए. See, I was having fast, तो मैंने मैंगो शेक किया. My father had a banana shake. But जिन लोगों को शुगर है यानी डायबिटीज है, वो अपना प्रॉपर खाना खाकर जाए. डोंट गो फॉर मैंगो शेक और बनाना शेक. ठीक है, उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं खाना पीना है. वो अपना प्रॉपर अपना खाना खाकर जाए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो लंच हो, वो अपना टाइम उस हिसाब से स्केड्यूल करे. उसके बाद आप वैक्सीन लगवाएं. वैक्सीन लगवाने के बाद आफ्टर मील ना, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि घर आकर नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो, कुछ ऐसा लाइट सा ड्रिंक लो जो आपको रिफ्रेश करे. ठीक है, उसके बाद ना हर थोड़ी देर बाद खाना खाओ. कुछ ना कुछ नॉट खाना, कुछ ना कुछ खाओ, ताकि आपका, क्योंकि वैक्सीन जो है ना वो बॉडी में फीवर भी लाएगी. व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन? फीवर आ सकता है, किसी को लेग पेन हो सकता है, किसी को पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, किसी को माइल्ड डायरिया हो सकता है, एंड लास्ट किसी को माइल्ड हेडेक भी हो सकता है. लेकिन आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है, सिर्फ एक पैरासिटामोल खानी है, डोलो 650 mg. इसके अलावा नो मेडिसिन शुड गो इनसाइड योर बॉडी. नो मेडिसिन मीन्स नो मेडिसिन एक्सेप्ट इफ यू आर डायबिटिक, तो जो आपकी डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है वो, एंड इफ यू आर बीपी पेशेंट तो आपकी जो बीपी की दवाई चल रही है वो. उसके अलावा आपको सिर्फ एक पैरासिटामोल खानी है. अगर आपका फीवर आ रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, चाहे आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपको कोई टॉपिकल ड्रग भी नहीं लगानी है. आप ये सोचो कि मूव लगा लेता हूँ पैरों में, ये लगा लेता हूँ पैरों में, या ये लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. You don't have to do that. Next slide please, sir. Symptoms. See, last year तक हम लोग कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स पढ़ते थे वो फीवर थे, कफ था, वीकनेस थी, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल और सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हम ये बोलते थे. उसके अलावा नहीं बोलते थे. इस टाइम पे जो नए सिम्टम्स आए हैं वो लूज मोशन और हेडेक आए हैं. डे 1 ऐसा नहीं है कि डे 1 पे आपको सारे सिम्टम्स मिलेंगे या कुछ भी नहीं मिलेगा. आपके साथ दोनों चीजें हो सकती हैं.
तभी इस वक्त जो कोविड है उसमें मैं आपको कह रही हूँ, आप अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखो, आप अपनी बॉडी को आइडेंटिफाई करो. फीवर, कफ, वीकनेस, सी लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है ना, तो उसको हम बेसिकली बोल रहे हैं नोज कोरोना. लॉस ऑफ टेस्ट, थ्रोट कोरोना. ब्रेथलेसनेस, लंग कोरोना. आपको जब आपको डे 1 पे आपको ऐसा लगे ना कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, just go for a 6-minute walk test from day 1 only. What is 6-minute walk test? 6 minute. First, sit on the chair. Put your right hand on a stable thing, on a stable table or anything, and then in the middle finger of the right hand, just measure your SpO2, saturation of oxygen in your body. Then do a 6-minute brisk walk. Sit on the chair. Measure your SpO2 again. If there is 5% or more than 5% fall, then that sign is alarming. You should inform your doctor. Don't wait कि आज मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं कल कर लेता हूँ. अगर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है ना, ask another doctor. Hunt, but don't wait कि यार कल ही पूछ लूंगा, इतना तो नहीं लग रहा है. ठीक है? Stop getting yourself lazy in your health, because your health means your family health. Understanding my point? आप किसी के लिए important हो ना हो, पर आप किसी भी एज के हो ना, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत important हो. You yourself are not important to you, but you are important to your family. Then if you experience any of the symptom from day 1, टेस्ट करवाओ. इस टाइम पे many people are asking me कि मैम हम ना डॉक्टर लाल से या 1mg से या किसी भी ऐप से बुक कर रहे हैं ऑनलाइन होम कलेक्शन के लिए, वो ना 2-3 दिन बाद का स्लॉट दिखा रहा है और फिर रिपोर्ट भी तो 18 आवर्स में आएंगी ना. आने दो, आई से आने दो, बट स्टार्ट योर मेडिकेशन. आस्किंग योर डॉक्टर, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे. सी मैं कुछ मेडिकेशंस बताऊंगी आगे, वो आप अपने घर में रखिए. एक स्टॉक, मैं ये नहीं कहूंगी कि 20-30 दवाइयां रखिए, एक सेट एक पर्सन के लिए, बिकॉज यू नेवर नो कि इमरजेंसी में क्या हो जाए. एंड एज यू ऑल अवेयर कि लोग इतना ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना स्टोरेज कर रहे हैं कि वी पीपल हु आर थिंकिंग फॉर द अदर्स और हु आर नॉट स्टोरिंग द थिंग्स आर गेटिंग अफेक्टेड. सो डोंट स्टॉक द मेडिसिन. पर मैं आगे कुछ बताऊंगी, वो प्लीज अपने घर में रखें. आपको क्या क्या टेस्ट करने हैं, अगर आपके डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, if you don't belong to a middle class family or a lower family, means if you can afford to spend 10 to 20,000 in 14 days on a one person, then you should go for the test on day 1 or 2 and then day 5th or 7th. Test are your CBC, that is your complete blood count, the ESR, erythrosedimentation rate, CRP, D-dimer, serum ferritin, IL-6 and COVID-19 RT-PCR. Those who can afford, they can go for CT scan on 2 levels. One will be day 3 or day 4 and other will be day 5th or 6th and might be extended to day 7. But those who can't afford so much, they can go for the test in a one round, and that one round will be on day 6 or day 7. Right? आप इसमें से कुछ skip करना चाहो? Sorry, sir. Slide is not visible. Please share it. Slide is not visible. Rakesh, sir, slide is not visible. Please say it. I think, sir, the slide should be visible. I believe बाकी लोगों को It's visible. It's visible. I'll put my hand. Yeah. It's okay, Rajesh. It's visible. Okay, sure. So we are continuing, sir. Please try to see. Can I continue, sir? Yes, ma'am. Please continue. All right. आप इसमें से जो स्किप करना चाहो, I'll say skip the ESR. अगर आप नहीं खर्च कर सकते हो, I can understand this problem is happening in my family also.
बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड पास्ट 1 year दी सिचुएशन को देखते हुए आप इसमें से ESR स्किप कर सकते हो एंड यू कैन स्किप ऑल्सो IELTS एंड COVID-19 RT-PCR आपको तो स्टार्टिंग में ही कराना पड़ेगा, इसको रिपीट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी CBC, CRP, डी डाइमर एंड सीरम फेरेटिन, ये 4 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गो फॉर देम। एंड इफ यू आर हैविंग सिम्टम्स लाइक फीवर, कफ or any other symptom which was happening to you, for which you have taken the medicines for the COVID, that is loose motion, headache, loss of smell or loss of taste. Don't go for loss of smell and loss of taste. Loss of smell and loss of taste को regain होने में कम से कम 1 month लगता है, because ये दोनों चीज नर्व से एसोसिएटेड होती हैं, नर्व को वापस से रीजनरेट करवाने के लिए टाइम लगता है। सो लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट वाले सिम्टम पे मत जाना, तो आप CT स्कैन के लिए जा सकते हो। आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपका डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, आपका फीवर नहीं जा रहा है, आपका कफ नहीं जा रहा है, या आपका कोल्ड नहीं जा रहा है, ये 5 सिम्टम आपके नहीं जा रहे हैं ऑन डे 6 और 7, then go for CT scan also along with these tests. Please change the slide. Interpretation of the reports. See, many people are asking ki what is the use of CRP, what is the use of IL-6, what is the use of D-dimer. See, basically I'll say कि CT स्कैन का जो यूज आई थिंक वो सबको पता चल गया इस टाइम तक, कि हम लोगों को ये देखना है दैट द कोरोना वायरस हैज नॉट इन्फेक्टेड आवर लंग्स, और अगर कर दिया है तो कितना कर दिया है कि हमें आगे क्या दवाइयां चलानी है अपने लिए, राइट। CRP इज बेसिकली एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो कोरोना वायरस है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, हमारे ऑर्गन्स को सूजन करता है, सूज जाते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स। तो बेसिकली क्या होता है ना, हमारी बॉडी के लिए हर एक चीज के लिए ना एक मार्कर होता है, CRP भी एक मार्कर है। अगर हमारी बॉडी में सूजन होगी ना तो CRP इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई अगर किसी का RT-PCR भी नेगेटिव है ना तो हम उसको बोलते हैं तू RT-PCR रिपोर्ट छोड़, अपना CRP बता कितना है तेरा। दैट इज द यूज ऑफ CRP. I think it has been understood by everyone. Then I move to D-dimer. See, मुझे ना सिर्फ आप लोगों को कोविड से नहीं बचाना है, हम लोगों को आपको पोस्ट कोविड भी बचाना है, और आपको ड्यूरिंग कोविड सिर्फ आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई इशू ना हो, बाकियों से भी बचाना है, ठीक है। तो D-dimer क्या होता है ना, हमारी बॉडी में मैंने आपको बोला मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। क्या होता है ना, कोरोना वायरस एक चीज कॉज कर रहा है। अभी रिसेंटली I think परसों we have listened to the news of the death of the Rohit Sardana, the anchor, favorite anchor I think of everyone of our generation, especially of Aaj Tak. He didn't die due to coronavirus. He died due to the complication of coronavirus, and that was the thromboembolism. Basically उनको क्या हुआ था कि उनका D-dimer raised था, ठीक है। D-dimer क्या होता है ना, हमारी बॉडी में हमने सुना है कि ब्लड बहता है, ठीक है। हमारी बॉडी की जो आर्टरी वेन है ना वो पाइप की तरह होती है, जो आप पानी का पाइप भरते हो ना उसकी तरह होती है। अगर आप उसको किसी जगह पे भी आप उसका एक वो जमा कर दोगे ना, कोई कॉटन बॉल या कहीं पे भी प्रेशर कम कर दोगे तो वो प्रेशर तेजी से बहता है पानी, राइट। नहीं तो हम आगे भी ऐसे बंद कर देते थे बचपन में, और वो गार्डनिंग में भी हेल्प करते हैं, वो ज्यादा तेजी प्रेशर से निकलता है। इसी तरह क्या होता है, कोरोना वायरस की वजह से ना हमारा ना किसी वेसल में ना ब्लड कोगुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो उसको छोड़ देता है। उसके बाद ना क्या होता है, कभी कभी वो ना वहां से डिसलॉज हो जाता है, जो ब्लड इकट्ठा हुआ होता है वो वहां से डिसलॉज होकर किसी भी मेन आर्टरी या वेन में चला जाता है, और वहां जाकर वो दिक्कत क्रिएट करता है। वो मेनली जाता है या तो आपके लंग्स वाली आर्टरीज में या आपके हार्ट वाली आर्टरीज में। इस वजह से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं लोगों को, इस वजह से लोगों की ज्यादा डेथ्स हो रही है। इसीलिए आपके लिए D-dimer, CRP करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। IL-6 के लिए मैं बोलूंगी, पर IL-6 ना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है इंडिया में, बिकॉज IL-6 के लिए ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है स्टोर करने के लिए, एंड दैट टेम्परेचर इज 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
और जैसे ही सैंपल कलेक्ट किया, इतने टेम्परेचर पे रखने के लिए इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज टुडे एवरीवन इज गोइंग फॉर होम कलेक्शन। 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पैथोलॉजिस्ट कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे टेम्परेचर? सो इसीलिए IL-6 को आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। मेडिसिन कोर्स, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड से इसमें एक चार्ट बना आएगा प्रेजेंटेशन में। उस चार्ट को आप लोग अपने घर में जिसको भी कोविड हो उसके लिए बना दीजिए। बेसिकली उस चार्ट में हमने 2 चीजें स्पेशली मेंशन करी हैं, योर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग एंड योर ऑक्सीजन लेवल। इन दोनों चीजों का आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, एंड नॉट ओनली टिल डे 12 बट ऑल्सो आफ्टर द 10 days, यानी कि 14 दिन के बाद आपका जो 14 क्वारंटीन पीरियड है उसके बाद आप घर में आ जाओगे, सबसे मिलोगे जुलोगे, उसके बाद भी 10 दिन तक आपको अपना टेम्परेचर रिकॉर्डिंग और आपको अपना फीवर रिकॉर्डिंग और आपको अपना SpO2 रिकॉर्डिंग रखना है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आपकी बॉडी में कोई भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो और आपको वो बाद में दिक्कत करे। बेसिकली जो लोगों के साथ आजकल हो रहा है, पीपल आर नॉट गेटिंग दिस मच, उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। मेडिसिन बेसिकली आपके डॉक्टर्स ही आपको सजेस्ट करेंगे, प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत जाना, बिकॉज ये टाइम होता है जब आपकी बाकी डिजीजेस भी, आपके बाकी डेंगू वगैरह भी धीरे धीरे आने का टाइम है। तो पता चले आपने सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर लिया, क्योंकि सिम्टम ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन फीवर पैटर्न अलग अलग होता है। तो वो चीज एक फिजिशियन ही या आपका कोई एक डॉक्टर ही बता पाएगा कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, डू यू नीड टू टेक द कोविड मेडिसिन और नॉट टू टेक। लेकिन मैं इसमें एक चीज बोलूंगी, प्लीज ये गड़बड़ मत करना कि 4 दिन मेडिसिन खा ली, डॉक्टर ने दिया 5 दिन का कोर्स, 4 दिन खाने के बाद आपको सही लग रहा है, आपके घर वाले भी कह रहे हैं हाँ ये एलोपैथिक डॉक्टर तो ऐसे होता है, जबरदस्ती की दवाइयां लिखते हैं, छोड़ दो। डोंट डू दैट। हम लोग कोई जबरदस्ती की दवाइयां नहीं लिखते हैं। ट्रस्ट मी, पहले जब मैं भी 10th-12th क्लास थी मुझे भी लगता था डॉक्टर पागल है क्या, 5 दिन की दवाई लिखा, मैं तो 3 दिन में ठीक हो गई हूँ। एक्चुअली जब मैं गई, मैंने पढ़ा, तब मैंने रियलाइज किया कि व्हाई वी डोंट गिव अ कोर्स ऑफ 3 days, व्हाई इट इज ऑफ 5 days। और एक और बात, अब मैंने ये बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है 5 के 6 दिन कर दो, जितना उसने लिखा है उतना ही सफिशिएंट है। द डॉक्टर्स आर नॉट मैड एट ऑल, हम पागल नहीं होते हैं, हम दिन रात पढ़ाई करते हैं, हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, हम कितने पेशेंट्स देखते हैं उसके बाद हम लोग बताते हैं। सो इट्स ऑल आवर एक्सपीरियंस, डोंट टेक योर डॉक्टर अ स्टूपिड वन। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, माइट भी आप किसी ऐसे से टकराए हो जिसने हेल्प ना करी हो, चीजें बिगाड़ दी हो। वी हैव एवरी टाइप ऑफ पर्सन इन आवर फील्ड, सो ट्रस्ट योर डॉक्टर। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, इट्स कम्प्लीटली राइट विद यू, ये आपका हक है। आप इसको आप अपने डॉक्टर, आपके जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, आप उसको किसी और डॉक्टर के साथ भी शेयर कर सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट्स योर लाइफ, यू हैव अ प्रॉपर राइट टू टेक योर डिसीजन, ठीक है। बट प्लीज डोंट स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन ऑन योर ओन। ये मत करना कि अपने आप ही खा ली, ज्यादा नहीं करनी है, अपने आप कम नहीं करनी है और अपने आप खानी भी नहीं है। लग रहा है मेरा डॉक्टर गड़बड़ कर रहा है, मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करना है, यू आर फ्री टू डू दैट। इट्स योर लाइफ, योर रिलेटिव लाइफ, योर लव्ड वन लाइफ, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आई विल से कि प्लीज कोर्स कंप्लीट करना एंड लिसन टू योर डॉक्टर व्हाट ही इज सेइंग और शी इज सेइंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। मैम एक सेकंड इस पे रुक के दिव्यलोक जी ने क्वेश्चन डाला हुआ है कि नेबुलाइजर इज ओके और टू टेक स्टीम इज ओके, कुछ आप इस पे। या श्योर सर, एक्चुअली क्या है ना, स्टीम इस वक्त सबको लेना है, ठीक है। स्टीम क्या कहते हैं, इस वक्त सबको लेनी है। नेबुलाइजेशन ना सर हम उनको करते हैं जिनके अंदर ज्यादा कफ जमा हुआ होता है, जिनको वेट कफ होता है ना, स्पूटम वाला बलगम वाला कफ होता है, उनके लिए हम नेबुलाइजेशन करवाते हैं, ताकि वो जो स्पूटम है, ताकि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो आराम से व्हाट शुड आई से वेट हो जाए इन योर लैंग्वेज आई से,
कि वो गीला हो जाए और आपका बलगम आराम से बाहर निकल पाए. दैट्स वाई हम नेबुलाइज करते हैं. बाकी इस टाइम आई विल से कार्वॉल प्लस से आपको, अगर आपको कोविड नहीं है ना, डोंट गो फॉर कार्वॉल प्लस स्टीम इनहेलेशन. नॉर्मल पानी से भी दिन में हर कोई 2-3 बार स्टीम ले, ठीक है. एवरीवन शुड टेक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. स्टीम ले 2-3 बार और 1-2 बार गार्गल करे ल्यूकवार्म वाटर और सॉल्ट से. तो प्लीज दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ. Okay, thank you, ma'am. You're welcome, sir. Next slide, please, sir. Ma'am, one more question, Yes, if you sir. allow me. See, suppose someone is having allergy, so can they take a vaccination? Allergy from what, sir? Like rashes, allergies, or like that? No, sir. During any disease period, आप vaccination नहीं ले सकते हैं. Ma'am, but allergy is like when I showed to doctor, so doctor said that it will go around. Miss, you have to take a medicine for till 6 months or like that. Sir, आप मुझे बता सकते हैं आप कौन सी medication ले रहे हैं? Allegra 180, Lecop M. You can take. But ध्यान रखिएगा सर कि जिस दिन आप वैक्सीनेशन लगवाओ ना, उस दिन आप मेडिकेशन मत लेना. Please skip your medication. That won't harm you. Okay, और so आप- 1 or 2 days or like. हाँ, या यू कैन स्किप. और जब आप सॉरी जब आप वैक्सीनेशन लगवाओगे तब भी हो सकता है कि आपकी बॉडी पे थोड़े बहुत रैशेज आ जाए एंड दैट विल बी कम्प्लीटली नॉर्मल. जस्ट सीक योर डॉक्टर हेल्प, ही विल हेल्प यू. Okay, thank you, ma'am. Thank you. You're welcome. Now, thank you so much, all of you. I will say Dr. Rishi will explain you from this because he is better and equipped with this part. So he'll take over. Hello. Rishi. Yeah, ma'am. One question I had. Yeah. हाँ One question I had. Yes, sir. बताइए. Hello. Yeah, can you hear me? एक क्वेश्चन ये है. Please, अजीत, बताइए. Yes, sir. Yeah. Yes. कई केसेस में अभी जो recently मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ रिलेटिव्स में, लाइक रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, RT-PCR भी, बट स्टिल कुछ आ रहे हैं. Sir, that only I told you कि starting में मैंने लाइक फीवर रेज नहीं हो रहा, तो उसमें फिर आता है कि Sir, your voice is not clear at all. I'm really sorry. Can you type your question, please? हाँ प्लीज सर, आप क्वेश्चन अपना टाइप कर दीजिए. इनफैक्ट मैं वापस एक बार एजेंडा कवर कर देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेशन आई थिंक 15 मोर मिनट्स शुड बी देयर. उसके बाद हम एक Q&A सेशन रखेंगे फॉर 15-20 मिनट्स. कर दोगे, आवाज नहीं आती है. आई थिंक सर आपकी तरफ थोड़ा नेटवर्क इश्यू है. आप एक बार रीजॉइन करने का ट्राई कर सकते हैं चाहें तो. मैं ये कह रहा था सर कि कॉल के बाद लास्ट का जो 15 मिनट्स हैं उसमें हम एक Q&A सेशन भी रखेंगे, तो जिसमें आप थोड़ी स्पेसिफिक क्वेरीज भी हैं वो भी एड्रेस कर सकते हैं, कुछ जनरल हैं जो सभी के लिए मीनिंगफुल हैं वो भी आप ले सकते हैं. तो अगर इफ यू से हम लास्ट के लिए आपका क्वेश्चन रख लें, वुड दैट वर्क? फाइन, वो लास्ट में आप कह रहे हैं ना? हाँ जी सर, श्योर, क्वेश्चन. बिल्कुल. इनफैक्ट मैंने सर अपना व्हाट्सएप नंबर भी और अपना मेल आईडी भी अभी चैट में डाल दिया है. आप लोग प्लीज अगर उसे नोट कर लें. पोस्ट दैट अगर कोई क्वेरीज हम यहाँ नहीं ले पाते हैं, आप एक बार उस पर कनेक्ट कर लीजिएगा, तो जो भी हमारे पैनल में डॉक्टर्स हैं हम उनसे भी आपको कनेक्ट करा के दे विल गिव यू सम 5-10 मिनट्स ऑफ टाइम टू डिस्कस योर इश्यूज स्पेसिफिकली. ठीक है ऋषि सर, प्लीज कंटिन्यू. वेल हाय एवरीवन. मैं डॉक्टर ऋषि दीप जैन हूँ. मैंने अपनी MBBS श्री ऑरबिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से करी है एंड राइट नाउ आई एम अ जूनियर रेजिडेंट एट सेम श्री ऑरबिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो मेरी कलीग डॉक्टर साक्षी ने कवर करा है उससे कुछ कॉमन क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो लोग मुझसे पूछते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे डॉक्टर साक्षी ने ये कहा था कि हमें डबल मास्क पहनना चाहिए. अब जब लोग डबल मास्क पहनते हैं तो वो बस मास्क पहन लेते हैं, वो अच्छे से एयर टाइट नहीं हो पाता. एयर टाइट का बेसिकली हम कैसे चेक कर सकते हैं कि मास्क अच्छे से हमने पहना है कि नहीं पहना? जैसे हम मास्क पहनते हैं
तो हम इनहेल करते हैं जब भी, तो हमें ये नोट करना चाहिए कि जैसे हम इनहेल करते हैं तो मास्क भी अंदर की तरफ खींचना चाहिए, विच मीन्स एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारे आसपास से कोई मतलब एयर बिना मास्क से फिल्टर हुए नहीं आ रही है, विच इज अ गुड थिंग। अदरवाइज क्या होता है कि लोग मास्क, डबल मास्क भी लगा लेते हैं, N95 भी लगा लेते हैं, बट वो मास्क अच्छे से पहनते नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर ऋषि आपकी आवाज नहीं आ रही अब। हेलो। Hello. Dr. Rishi is not audible. Okay, Dr. Rishi is not audible, so I can take him further. There is no issue. Sir, please open that 5th day slide. See, why 5th day is very important. See, मैंने पहले भी बोला है कि जो वायरस है वो एक दो फेजेस में काम कर रहा है, फर्स्ट 6 days एंड द नेक्स्ट 6 days। ठीक है, ये जो आपका 5th डे है ना, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, बीइंग मी ऑल्सो, मैं भी क्या करती हूँ, 2-3 दिन ठीक हूँ, ठीक है यार, ठीक ही तो चल रहा है, सब कुछ नहीं हुआ है, अरे मस्त है मस्त है मस्त है मस्त है, अपनी हेल्थ को ज्यादा हम कंसर्न करते नहीं है। और वो 5th डे पे हम ज्यादा ही लीन हो जाते हैं, 6th डे पे और भी लीन हो जाते हैं। 5th डे पे ना आपको ध्यान रखना है, इट्स नेवर लाइक कि कोविड का जो फीवर है वो आपको पूरे 12 days आएगा। नो, इफ आफ्टर 4th day you are getting any of your symptom, your fever is more than or equal to 99.4, you are having breathlessness, falling of oxygen, आपका कफ आ रहा है, आपको कोल्ड आ रहा है, आपका कोई भी सिम्टम आ रहा है, that symptom is alarming. Consult your physician as soon as possible. अगर आपका फिजिशियन अवेलेबल नहीं है, अगेन आई विल से कंसल्ट टू अनदर डॉक्टर। पिछले 1.5 साल से हर एक डॉक्टर कोविड से किसी ना किसी तरीके से रिलेट हुआ है। एवरी वन ऑफ अस एज अ हेल्थ केयर वर्कर हैव बीन सर्विंग टू कोविड पेशेंट्स। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज, अगर आपका 4th डे के बाद आपको फीवर लगता है, नॉट लगता है पे मत जाना, कीप योर थर्मामीटर, योर पल्स ऑक्स विद यू। ये 2 मशीनें ऐसी हैं जो आपके घर में होनी चाहिए इस टाइम पे। किसी के फैमिली में नहीं है, प्लीज परचेज इट, प्लीज अरेंज इट, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू नीड दिस। एंड दोज पीपल, और इस वक्त क्योंकि कम्युनिटी फेज कभी भी स्टार्ट हो सकता है, सो आई विल से कि जिन लोगों को कोई भी, जो लोग क्या कहते हैं बाहर जाते हैं या घर में भी रहते हैं, प्लीज अपना टेम्परेचर दिन में कम से कम एक बार चेक जरूर कीजिए, अपना पल्स ऑक्स एक बार जरूर देखिए। प्लीज डू दिस फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। 5th डे पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे ना 6th डे 7th डे पे अलार्मिंग बनती है। तब तक हमारे लंग्स में जो वायरस है वो बहुत गंदी तरीके से इन्वेड हो चुका होता है। ठीक है, इसीलिए 5th डे थोड़ा ट्रिकी होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेंटली सोचना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। Some medications if oxygen is less than 90. See, you should prednisolone 20 mg, methylprednisolone 16 mg. Many people have been asking me कि why to give steroid. स्टेरॉइड तो शुगर बढ़ा देता है, स्टेरॉइड तो वेट बढ़ाता है, स्टेरॉइड के ये साइड इफेक्ट। हमेशा डॉक्टर बोलते हैं स्टेरॉइड अवॉइड करो, अब डॉक्टर अचानक से ना स्टेरॉइड के पीछे भाग रहे हैं। भैया इस वक्त ना हमें वो नहीं देखना है कि आपका शुगर कितना जा रहा है और आप मोटे कितने हो रहे हो, वो सेकेंडरी थिंग्स है। अभी हमें आपकी जान बचानी है, आपका लंग डैमेज बचाना है, आपको बचाना है, तो हम लोगों को स्टेरॉइड यूज करना पड़ेगा। एंड प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट,
खुद मत स्टार्ट करना स्टेरॉइड। अगर 5th डे पे फीवर आ रहा है, आस्क योर डॉक्टर कि मुझे फीवर आ रहा है, मैं क्या करूं। वो आपको बोलेगा सीटी स्कैन के लिए जाओ, सीआरपी के लिए जाओ, लेकिन वो आपके स्टेरॉइड भी स्टार्ट करेंगे। और अगर उन्होंने बोला है ना कि 16 mg दिन में 2 बार खाना है, अपना दिमाग मत चलाना। कोई भी मत सोचना ये कि 16 mg एक बार खा लेते हैं, एक बार 8 mg खा लेते हैं, स्टेरॉइड तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। प्लीज प्लीज, हर कोई डॉक्टर जो हम तक पहुंचता है, जो बड़े बड़े सीनियर्स हैं, they have been in contact 24/7 with WHO, with the world's big doctors, famous doctors, best practitioners. आपने न्यूज में सुन रहे होंगे इस वक्त वर्ल्ड के हर एक कंट्री इंडिया को हेल्प कर रही है। They are not helping only by sending their oxygen cylinders, oxygen plants, giving us the medicines and vaccines, but they are also keeping a check and track on what is happening, how the disease is changing in India. They are all the best practitioners, best physicians over the globe are connected 24/7 with the best doctors of India. And best doctors of India are time to time posting their guidelines for the new doctors, upcoming doctors, or doctors who are not experienced, or doctors who are not the pulmonologists or the physicians, कि क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, इन पेशेंट्स में क्या नहीं करनी। इस वक्त हाई टाइम है टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। मैं दोबारा बोलूंगी, एक डॉक्टर के ऊपर फेथ नहीं है ना, यू कैन स्विच टू डिफरेंट डॉक्टर, लेकिन प्लीज स्टेरॉइड्स लेने से ये मत सोचना मेरे को वेट गेन होगा, मेरी नेक पे फैट होगा। मैं पहले भी बोल रही हूँ, डाइट, योर बॉडी कैन बी मेंटेन्ड अगेन, बट योर लाइफ कैन नॉट, और योर लव्ड वन लाइफ कैन नॉट। हाई टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जबरदस्ती से खुद से मत खाना स्टेरॉइड। यहाँ पे डोजेस लिखी हुई हैं, बट हम ना स्टेरॉइड्स पर्टिकुलर हर एक पेशेंट को देख कर देते हैं, इसीलिए स्टेरॉइड्स हमेशा अंडर द कंसल्टेंसी ही लेना चाहिए। एंड आपका डॉक्टर बिना आपका सीटी स्कैन दे के स्टेरॉइड दे रहा है ना, ट्रस्ट हिम और हर। एंड स्टेरॉइड कभी भी एक चीज होती है, आप कुछ हमारी मेडिसिन होती है जिन्हें हम टेपर ऑफ करके कम करते हैं, स्टेरॉइड भी उनमें से एक है। अगर डॉक्टर ने बोला 2 दिन 16 mg 2 बार, फिर तीसरे दिन एक बार 16 mg, एक बार 8 mg लेनी है, तो ट्रस्ट हिम, आपकी बॉडी के साथ वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, स्टेरॉइड को एक पर्टिकुलर वे में कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आपको 2 दिन 32 mg दे दी, मैं एकदम से आपको सिर्फ दिन के 4 mg पे लिया, ऐसा नहीं कर सकती, वो आपकी बॉडी को डबल हार्म करेगा। ठीक है, प्लीज चेंज दी स्लाइड सर। एंड यस, हियर इकोस्प्रिन इज नॉट अ स्टेरॉइड. Ecosprin is given when your D-dimer is high. Remember मैंने बोला था कि वो ब्लड जम जाता है, अलग होता है. Ecosprin is for that. इसीलिए वो टेस्ट जरूरी है. So please another slide. What else have? Yoga will help you. Your positive mind will help you. Fluid intake, steam gargle and proning. See, basically बहुत लोगों ने पूछा कि प्रोनिंग से क्या होता है. प्रोनिंग से ना हम जब सीधे लेटते हैं, when we lie with our back, तो क्या होता है, हमारे लंग्स ना कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं. If we sleep with a right hand or left hand or with our belly, then our lungs get a proper space to get expand. So that is basically helping in increasing the oxygenation level. I'll suggest again, not only the people who are having COVID have to do this, have to sleep like this, but all of you दिन में कम से कम ट्राई कीजिए. जो मेरी जनरेशन है ना, उसको तो पसंद ही उल्टा सोना है. We sleep like babies only. We are not grown up, I think, because me and my friends, मैं जिनसे भी बात करती हूँ, मेरे colleagues and all, we always say कि यार हम तो ना उल्टे ही सोते हैं, हम कभी सीधे ही नहीं सोते. बट जनरेशन लाइक माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मैं देख सकती हूँ बहुत लोग मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स की एज की कनेक्टेड है. आई विल रिक्वेस्ट यू सर एंड मैम, प्लीज ट्राई टू स्लीप ऑन योर बेली.
ये आपको नॉर्मली भी आपकी लंग की रिकॉइलिंग में हेल्प करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक्चुअली क्या है, कोविड को ना हम किसी भी बड़ी चीज से नहीं रोक सकते हैं। कोविड को रोकने का, अपने आप को बचाने का, अपनी फैमिली को बचाने का एक ही तरीका है कि जो भी चीजें है ना सबको कंबाइन करके थोड़ा 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 सब करें, एंड देन दैट विल बी अ ग्रेट रिजल्ट टू अस। मैम डॉक्टर ऋषि हैज आल्सो जॉइंड इन, तो डॉक्टर ऋषि आप हैं अभी? ओके, रिसेंटली एडमिटेड हिम, आई थिंक वो दिखा भी रहे हैं मेरे को लिस्ट में, बट यू प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, प्रोनिंग कैसे करनी है? प्रोनिंग में आपके जो दोज पीपल हु आर हेल्दी, बेसिकली उनको ना 2 पिलोज अपनी बेली के नीचे रखने हैं। योर बेली शुड नॉट टच द योर मैट्रेस और द ग्राउंड और द place where you are sleeping. Below the chin there will be 2 pillows, and under your feet there will be 1 pillow, and if you want to keep 2 pillows that will be sufficient. This is the way of proning. Next, steam and gargle will be like, आपको दिन में कम से कम 2 बार स्टीम लेनी है। आप लोग नॉर्मल पानी से भी स्टीम ले सकते हो इफ यू वांट। आप उसमें कभी कभी, नॉट डेली, ऑल्टरनेट डेज और वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक उसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। तुलसी का पत्ता डाल के, ये सब तुलसी का पत्ता एंड अजवाइन डाल के भी स्टीम ले सकते हैं। गार्गल हर किसी को करना है दिन में 1 बार एटलीस्ट। ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के प्लीज डू दी गार्गल्स। जिन लोगों को कोविड है या कोई सिम्टम है वो इस चीज को 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक ना, स्टे हाइड्रेटेड। मैं नेक्स्ट में भी बताती, मैं यही कंप्लीट कर देती हूँ उसको। स्टे हाइड्रेटेड, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि ना हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रेटेड कैसे रहो? हम पहले बोलते थे योर फ्लूइड इनटेक शुड बी 2 maximum to the 2.5 liters in the winters, in the summers, and that 2.5 liters should include all your vegetables, fruits, your juices, जो भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो वाटर के अलावा, वो सब में कवर होना चाहिए। But this time we are requesting you for next 3 to 4 months, जब तक ये कोविड ज्यादा हाई पीक पे है, कि प्लीज आप लोग दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर तो सिर्फ पानी ही पीजिए। उसका रोल क्या है कि जो वायरस है ना वो अंदर मल्टीप्लाई करता है, और जब वो मल्टीप्लाई करता है ना तो वो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी पाइप है, ट्रैकिया, विंड पाइप ब्लॉक होती चली जा रही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ जमता चला जा रहा है। जब हम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पियेंगे ना तो वो वॉश आउट होने में हेल्प करेगा, और वो वायरस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो रुकावट आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, उसको कम करेगा। दिस इज दी थिंग कि स्टे हाइड्रेटेड। इसलिए मेरे जैसे लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या जो लोग काम में इतना बिजी रहते हैं, मैं भी अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माय हॉस्टल, आई यूज्ड टू स्टे इन माय हॉस्टल, पानी की बोतल खत्म हो जाती थी, यार वाटर कूलर तक कौन जाएगा, पढ़ लेती हूँ। वो पढ़ाई में कब सॉरी हमारे कब 2 घंटे निकल जाते थे ना, हमें पता नहीं चलता था, और पानी पीना ही भूल जाते थे हम। सो व्हाट आई हैव डन राइट नाउ इज, मैंने ना हर 45 मिनट्स का ना एक अलार्म लगा रखा है। हर 45 मिनट्स बाद मेरा एक अलार्म बजता है, मेरे को ये बोलता है कि नाउ यू हैव टू ड्रिंक दी वाटर। दिस इज द थिंग आई थिंक विच आर जनरेशन पीपल शुड फॉलो। जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या जो कोई भी भूल गए पानी पीना, हर एक 45-50 मिनट्स का अलार्म लगाइए, बॉटल साथ रखिए, पानी पीजिए। स्टे पॉजिटिव। मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपका ना आप जब पैनिक करते हो, व्हेन वी गेट पैनिक, हमें जब एंजाइटी होती है ना, अगर किसी को, आपके रिलेटिव को या आपको खुद को अगर एंजाइटी अटैक्स आते होंगे तो आपको पता होगा एंजाइटी अटैक में ना एकदम से बीपी शूट अप करता है। बीपी पहुंचता है 180, 200, 220, इतना तेज पहुंचता है। जब हमारा बीपी बढ़ता है ना तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट, यानी हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी बढ़ता है। वो जितना बढ़ेगा ना उतना फिजियोलॉजिकली, नेचुरली
हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होगा, सैचुरेशन कम होगा। खुद ही सोचिए बेसिकली क्या होगा कि हम जितनी जल्दी सांसें लेंगे, हमारे लंग्स को ना उतनी जल्दी काम करना पड़ेगा, वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स को नहीं दे पाएगा, वो एक्सचेंज ही नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि जल्दी कर रहा है। कहाँ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट बड़ों में होता है 18 से 20, जैसे बीपी शूटअप होता है ना 180, 200, 220, एकदम से ना ये रेस्पिरेटरी रेट पहुंचता है 27, 28, 29, 30, एंड इट इज नॉट अ गुड साइन। बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना मतलब आपके लंग्स को सैचुरेशन नहीं मिल रही है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन अंदर बाहर हो रहा है। दैट इज वाई स्टे पॉजिटिव। योगा में मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम, कपाल भाती, कोबरा पोज, ये सब चीजें क्या करती हैं, ये आपकी चेस्ट एक्सपेंशन और लंग्स रिकॉइलिंग में हेल्प करती हैं, ये चीजें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सी एक्चुअली ना घबराने की बात नहीं है इस स्लाइड को सुन के, ना ही मैं ऐसा कुछ बोलूंगी, लेकिन डायबिटीज और कोरोना वायरस एक दूसरे के ना दुश्मन है, मतलब दोनों को ना पसंद ही नहीं है। डायबिटीज कहती है मुझे कोरोना नहीं चाहिए, कोरोना कहता है मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए, और अगर हम मिलेंगे ना हम वॉर करेंगे, और वॉर हो कहाँ रहा है, ह्यूमन बॉडी में। अफेक्ट कौन होगा, ह्यूमन बॉडी। सो बेसिकली आई विल सजेस्ट दोज हु आर डायबिटिक, प्लीज अभी के लिए स्टे फोकस ऑन दी हेल्दी डाइट। चीट डेज मत कीजिए, रेगुलरली आप अपनी डाइट जैसे मेंटेन करते थे अर्लियर, उसमें आप एक दिन चीट डे का करते थे। प्लीज इट्स अ हाई टाइम, आई थिंक 2-3 महीने में अगर आप बेसिक हेल्दी खाना खाएंगे वो किसी को अफेक्ट नहीं करेगा, सबको वो हेल्प ही करेगा। सो जो लोग डायबिटिक है प्लीज वो अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखें। जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो डायबिटिक, जो लोग डायबिटिक नहीं है, जिन्हें कोविड नहीं है, स्टीम गार्गल वगैरह, वो अगर कभी कभी स्किप भी हो जाए सॉरी चल जाएगा, लेकिन जो लोग डायबिटिक है प्लीज वो थोड़ा ध्यान रखें। मैं खाने के लिए आगे बताऊंगी कि किसको क्या खाना है किसको नहीं खाना है इन दी नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन हाँ, अब जो लोग डायबिटिक है रोज ना प्रिकिंग मुश्किल होता होगा। आई कैन हैव दी पेन, बिकॉज हम लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते थे ना, हम भी अपनी फिंगर प्रिक करके ब्लड निकालते थे, बहुत पेन हो जाता है यहाँ पे। आप लोग रोज नहीं कर सकते, अगर आपका शुगर लेवल बॉडी में मेंटेन्ड है ना, आप हफ्ते में 3 बार अपना फास्टिंग और अपना पोस्ट मील कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ ऑक्सीजन टू बी यूज्ड एट होम। अगर आपके पास घर में सिलेंडर है तो प्लीज, अगर ऑक्सीजन 92 से 93 से नीचे गिर रहा है तो, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रोनिंग आपके पेशेंट को हेल्प नहीं कर रही है, जस्ट पुट ऑन द ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है, आप आजकल बहुत वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है विच वन इज राइट, आई हैव माई वन ऑफ द कलीग हैड क्रिएटेड दिस वीडियो, मैं वो शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, दैट विल बी रीच टू यू। हॉस्पिटलाइज कब करना है, सी क्या होता है ना कि कोविड में ना एकदम से ना हैप्पी हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होना बॉडी के अंदर, ठीक है। कोविड में ना हैप्पी हाइपोक्सिया होता है। हैप्पी मतलब कि ना वायरस ना बहुत ट्रिकी है, मैंने आपको बताया ना 6 दिन तक कुछ नहीं करेगा, 6 दिन बाद सडनली इसको पता नहीं क्या हो जाता है, बॉडी से दुश्मनी होती है, एकदम से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि आपको हैप्पी हाइपोक्सिया क्या करता है, ये दिखाएगा नहीं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ गई है, लेकिन आपको ना क्या क्या साइंस देखना है। आप अपने नेल्स देख सकते हैं, नेल्स में ना जैसे कि अभी ना आपके नेल्स पिंकिश कलर के होंगे, या जिनमें खून की थोड़ी बहुत कमी है उनमें थोड़े व्हाइट होंगे। अगर ये थोड़े बहुत भी ब्लू हो ना, दैट इज एन अलार्मिंग साइन। आपके लिप्स थोड़े ब्लू होना, दैट विल बी योर अलार्मिंग साइन। आपकी टंग की टिप अगर ये थोड़ी सी ब्लू होनी शुरू हुए ना, दैट विल बी योर अलार्मिंग साइन। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। प्लीज चेंज द स्लाइड सर।
that this is some good news. Actually, this is a 82-year-old lady in the UP. She has been fighting with coronavirus from the past 12 days. इसके पास ना कुछ नहीं था. She doesn't have so much of money and इसके पास कोई ऐसा सोर्स भी नहीं था जो इसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर या इसी वेंटिलेटर दे. What she did was only the proning. इसने कहीं से सुना कि ऐसे लेते हैं because she was not wealthy. Proning से ही she revived her oxygen from I think 60 or 70 to 90 to 92. See how much effective is proning. इतना तो जल्दी आपका ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं करता जितना जल्दी ये करता है. ठीक है, प्लीज चेंज द स्लाइड सर. सी डाइट एंड लाइफस्टाइल से पहले ना, बिफोर एंडिंग द सेशन, मैं कुछ एक दो चीजें और बताना चाहूंगी कि देयर वाज वन केस, मैं उसकी वीडियो भी शेयर करूंगी. विल पावर कितनी स्ट्रांग होती है. कीप योर विल पावर स्ट्रांग. कोविड हो गया है ना, डोंट लिसन टू द नेगेटिव न्यूज अराउंड यू प्लीज. आप अपनी जितनी विल पावर स्ट्रांग करोगे ना, ये तो आपको भी पता है कि डॉक्टर भी, मेडिसिन भी तब तक ही असर कर पाती हैं जब तक पेशेंट चाहता है. द मोमेंट पेशेंट सेज कि अब नहीं हो रहा है ना, वो पेशेंट की विल पावर ड्रॉप एंड द थिंग इज नेक्स्ट इज नथिंग बट नेगेटिव रिजल्ट. I'll share a link. There was a lady. She was 65 or 70 years old. She is. उनको टीबी भी था ड्यूरिंग कोविड. पिछले 6 महीने से वो टीबी की दवाइयाँ ले रही हैं. फ्रॉम पास्ट 15 years वो डायबिटीज की मेडिसिन ले रही है. और मेडिसिन वो गोलियां नहीं ले रही है, वो इंसुलिन पे है. और इंसुलिन की डोज भी उनकी अच्छी खासी हाई थी. बट उन्होंने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी. वो हॉस्पिटलाइज हुई. उन्होंने हॉस्पिटल में एक विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी और अनुलोम विलोम और कपाल भारती किया. बिकॉज इन हॉस्पिटल सेटिंग यू कैन डू द कोबरा पोज, राइट. आपके हाथ में आईवी होता है, कैनुला लगा होता है. नाउ आफ्टर 12 days ना, शी हैज रिटर्न टू अ होम. आप देखोगे ना उनको, व्हेन यू विल सी दैट वीडियो, आपको यकीन नहीं होगा कि लोग ऐसे. ठीक है. एंड स्टॉप लिसनिंग टू 4 लाख केस आ गए. मेरे घर में भी ना सुबह सुबह टुडे माय अंकल सेड, माय चाचू सेड, आज ना 4 लाख केस आए थे. पता है, मैंने उन्हें छुट्टी बोला. मैंने कहा ठीक कितने हुए? देन ही सेड 3 लाख. सी द पॉजिटिव साइड ऑफ पॉइंट. ठीक है. ये नहीं है कि आप इस मेरी बातें सुन के, ये वाली बातें सुन के बेधड़क हो जाओ और बाहर जाओ, घूमो फिरो. नहीं, बट अपने माइंड को पॉजिटिव रखो. मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी चित्रा मैम का. मैनी ऑफ माइट यू नो. जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ. मनीष सर हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट में, उनकी वाइफ चित्रा मैम. मेरे पास एक दिन ना, अभी लास्ट वीक विक्रम सर का कॉल आया, विक्रम बजाज सर का, कि साक्षी, मनीष की वाइफ की हालत बहुत खराब है. HRCT स्कैन स्कोर आप सुनोगे ना, सोचोगे कितना आया था. उनका स्कोर था 17. मैं, मनीष सर, नताशा मैम, विक्रम सर, हम चारों, मतलब उस दिन ना वीवर लाइक कि अभी तक तो ठीक थी, क्या हो गया एकदम से. उनको ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो चुका था. बाय चांस की बात है, हमने उन्हें मतलब फरीदाबाद में उनके कोई अंकल हैं, वहां से उनको सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर मिला. लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग, मनीष सर ना वहाँ पे ऑक्सीजन का खत्म होने का और चित्रा मैम को कुछ हो जाए उसका साइन करा था कि इन केस हॉस्पिटल अथॉरिटी इसमें कुछ नहीं करेगी. दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड. चित्रा मैम सेड कि मुझे घर जाना है. नेक्स्ट डे वी ब्रिंग बैक हर होम. परसों इन लोगों ने वापस शोर मचाया कि नहीं हम तेरे को हॉस्पिटल एडमिट करना है. शी जस्ट कॉल्ड अप मी. आई सेड कि इफ शी इज डिनाइंग नाउ, लेट हर स्टे एट होम. आप बिलीव नहीं करोगे, जो लेडी 2 दिन पहले तक इतनी चोकिंग थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी. जस्ट हर विल पावर एंड द अनुलोम विलोम कपाल भारती, आज वो ऐसी है दैट हर ऑक्सीजन लेवल इज ऑलवेज 94, 95. इससे नीचे वो लाने ही नहीं देती. उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि शी मोटिवेटेड मी कि यस, कीपिंग द विल पावर स्ट्रॉन्ग कैन हेल्प एनीथिंग, मेक मी डू एनीथिंग. So that is the case I'm saying you.
मतलब मेरे को ऐसा लगा ना ये यस, एंड शी टॉक्स नाउ, बातें करती हैं, फोन करके बात करती हैं, बताती रहती हैं, अप टू डेट रखती हैं, और अपना हर दवाई वगैरह टाइम पे ले रही है, खा पी रही है. शी इज नॉट गेटिंग पैनिक. मनीष सर बीच बीच में पैनिक हो जाते हैं, बट शी इज नॉट गेटिंग पैनिक. सो लुक दी पॉजिटिव पीपल अराउंड यू. मेरा ये एग्जांपल देने का इसलिए था बिकॉज मेनी ऑफ यू आर कनेक्टेड टू द ह्यूमैनिटी फर्स्ट. मेनी ऑफ यू, मैं जो भी लिंक शेयर करूंगी वो थोड़ा ऐसे ही होगा, बट ये चीज है कि आप किसी नोन को जानते हो और उसकी विल पावर देखिए. सी, ठीक है. एंड नाउ कम्स पोस्ट रिकवरी पीरियड. सी, कोविड या कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में ना बहुत इलनेस ला देती है. इस टाइम पे, सॉरी गाइस, इस टाइम पे व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, हाइड्रेट वेल एंड योगा. हाइड्रेशन का मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो सिक्रीशन होती है, वॉश आउट होता है, इसीलिए आपको हाइड्रेटेड रहना है. दूसरी चीज व्हाट टू ईट, मैं इसमें बोलूंगी कि आप इसमें हर चीज खाइए. आप अपनी डाइट में सूप रखिए, आप अपनी डाइट में दाल रखिए, आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रखिए, प्रोटीनेशियस डाइट रखिए. आप अपनी डाइट में जो लोग एग खाते हैं एग रखिए, जो लोग चिकन खाते हैं चिकन रखिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है एंड कैन अफोर्ड वो टोफू पे भी जा सकते हैं. जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ड्यू टू एनी अदर रीजंस, डोंट गो फॉर हाई और रिच डाइट्स. मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा है कि कोविड ने ना हमें हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाला लाइफस्टाइल जीना सिखाया है. क्या वो टोफू खाते थे? उनके टाइम पे टोफू जैसी चीज उन्हें पता भी नहीं थी. What they used to eat is eating healthy and eating at a correct time. Please eat healthy. जो भी है ना हेल्दी खाओ. Stop eating at this time. लॉकडाउन है, लास्ट ईयर की तरह मत करना. लॉकडाउन है, चलो जलेबियां बनाते हैं, चलो आज छोले भटूरे बनाते हैं. अरे लॉकडाउन है ना, मिलना है ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को, करो ना. Play with your kids, play with your grandkids, talk to your kids. जो बड़े हो चुके हैं उनकी, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, I'll suggest कि being a 24 also, I sit with my father, my mother, हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है. Talk to your parents, talk to your children, play with them, spend time with them. कुछ और नहीं ना, घर की सफाई कर लो साथ मिलके. ठीक है. देन इज कि हाँ सॉरी, क्या खाना चाहिए, सही टाइम पे खाना चाहिए. ये नहीं है कि आपको टाइम मिल रहा है फ्रॉम योर ऑफिस, फ्रॉम योर रेगुलर शेड्यूल, यू आर गेटिंग अप एट 10 o'clock. स्टॉप डूइंग दैट. आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जैसे फॉलो करते थे, गेटिंग अप बाय 6-6:30, उठो, डू दी योगा. एंड सबसे पहले हर कोई उठ के सबसे पहले मेक अ हैबिट, एक वाटर बॉटल अपने बेड साइड रखिए. सबसे पहले जो कोई भी उठेगा पानी पिएगा, अपने आप को हाइड्रेट करेगा. इसका रीजन क्या है, जब हम सोते हैं रात को तो हमारी बॉडी रिपेयर करती है. जब हमारी बॉडी रिपेयर करती है ना, कोई भी चीज रिपेयर होगी तो वो गंद तो निकालेगी ना, तो वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. जब हम सुबह उठ के पानी पियेंगे ना, तो वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से वॉश आउट होंगे. So this is important कि the moment you get up from your bed, just drink 1 or 2 glass of water. Make it a habit not only during this time but for all the times. ये जो मैं बोल रही हूँ ना, पोस्ट कोविड, पोस्ट रिकवरी, ये आपके पूरे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. Then next is eat healthy. Eat healthy में सुबह have your breakfast by 8:30 or 9 at any how. Stop having your breakfast by 11. No. Have your breakfast by 9. Get a small brunch type meal by 12 to 1. Then have your food, have your lunch by 2:30 to 3. By 4:30, 5:30, have something like tea, coffee, what you are having, this scheduled thing in your family. Then by 8:30, have your dinner. People like us who are sleeping late, having late night calls, humanity first से जो सारा दिन रात काम करते हैं, they can have late night milk. हल्दी वाला दूध पीजिए प्लीज. जिन लोगों को बीपी है वो हल्दी वाला दूध नहीं पी सकते.
तो दे कैन गो फॉर नॉर्मल मिल्क, राइट? स्टॉप ड्रिंकिंग लेट नाइट कॉफीज। अभी के लिए तो छोड़ दो, बात की बाद में देखेंगे, राइट? नेक्स्ट इज अपनी डाइट में एक प्रोबायोटिक यानी दही जरूर ऐड कीजिए, लेकिन जो आपका दही है वो सिर्फ आप या तो सुबह खा सकते हैं या आप दिन में। नो कर्ड, नो प्रोबायोटिक एट नाइट। नेक्स्ट इज योर फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स शुड बी ईटन एट डिफरेंट टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने वाटरमेलन, मस्कमेलन, खरबूजा, तरबूज, आम वगैरह काटा, उसी के साथ आपने कहा कि चल इसमें एक टमाटर भी काट लेते हैं, अच्छी सी चाट बन जाएगी। नहीं, योर रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड नेवर बी टुगेदर, एंड फ्रूट should never be eaten with your meal. It should always be eaten approximately half an hour. 1 घंटा पहले खाओगे तो अच्छा है, इसलिए मैं कह रही हूँ 12 से 1 बजे के बीच में कुछ उल्टा सीधा खाने से अच्छा है मेक इट अ हैबिट 12 से 1 बजे के बीच में अपना फ्रूट डाइट लो। आज आपने वेबिनार अटेंड करा है, कल ले लेना, ठीक है? अभी तो सबका लंच टाइम हो गया। रॉ वेजिटेबल्स आप अपने उसके साथ खा सकते हो। देन आई विल से जो लोग गार्लिक खा सकते हैं या जो लोग खाते हैं ना, प्लीज गार्लिक लीजिए। गार्लिक जो है ना वो एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी इंफ्लामेटरी जो लोग नहीं समझे मैं बता देती हूँ, जो सूजन आ रही है ना उसको हम स्टेरॉइड से तो कम कर ही रहे हैं, प्लस में गार्लिक जो है वो नेचुरली एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है, तो उस चीज में भी कीजिए। व्हाट नॉट टू ईट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ सूप, किसी भी तरीके का आप सूप पी सकते हैं, लेकिन जो लोग मशरूम खाते थे पहले वो ही लोग मशरूम सूप के लिए जाएंगे आज से। पर जो लोग मशरूम जिन्होंने आज तक नहीं खाए हैं ना, प्लीज डोंट ट्राई, क्या पता उसी से आपको एलर्जी हो जाए, दिक्कत क्रिएट होगी। अपनी बॉडी पे इस टाइम पे कोई नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। नहीं खाते थे पहले मशरूम तो हो सकता है आपको एलर्जी हो, सो डोंट गो फॉर मशरूम। जो लोग मशरूम खाते थे पहले वो मशरूम सूप ले सकते हैं। आइल से रात को रोटी खाना बंद कीजिए। आपको सूप पीजिए, कटोरा भर भर के सूप पीजिए, दाल लीजिए, ज्यादा बात है तो उसी के साथ एक रोटी खा लीजिए। स्टॉप मेकिंग अनदर वेजिटेबल फॉर द सूप एंड द सूप, ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट नॉट टू ईट इज दी, यू शुड नॉट ईट ट्रांस फैट आइटम्स लाइक बटर, योर तेल, उनमें तली हुई पूरियां, उनमें तले हुए भटूरे, ये नहीं खाना है। व्हाट नॉट टू इट इज बेसिकली दिस, हाइड्रेट वेल एंड योगा। योगा में बाकी आपको जो योगा के आसन अच्छे लगते हैं वो कीजिए, पर 3 जो मैंने बोले हैं वो स्पेशली कोशिश कीजिए हर कोई करे। थैंक यू ऑल, कोई खुश। एंड यस, डायबिटीज के लिए मेरे पास बहुत प्लीज हम योगा जो 3 आप बता रहे थे कौन से थे? सर योगा एक कपाल भारती, नेक्स्ट इज योर अलोम विलोम एंड द वन इज योर कोबरा पोज। ओके मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरा किसी को अभी 76 आया है, बट मुझे अभी भी लेकिन तब भी लंग्स में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे दर्द होता है। ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है? ऑक्सीजन लेवल कितना है मैम आपका? मैम 97। मैम एक्चुअली आप कोविड पेशेंट है? यस मैम वो थोड़े टाइम रहेगा, इसीलिए आपका कौन सा डे है कोविड का? इट्स 6 आई गेस, सिम्टम का 6 आपको started सिम्टम से 6 started with cough, then mild fever, Started then with cough. two fever. एंड मैम आपने कौन से टेस्ट करवाए हैं अभी तक? मैम मैंने अभी डीडीमर कराया था, डीडामर कराया था, सीआरपी, और ये चेस्ट सीटी मैंने कल कराया जब मेरे पेन हो रहा था, तो तब उसमें स्कोर 6 आया था। तब से फिर मैंने स्टेरॉइड शुरू किया है, डेक्सामेथासोन। कितना ले रहे हैं आप? मैम अभी मैं ले रही हूँ 12 mg पूरा दिन का या एक टाइम का? एक टाइम का, मतलब वन टाइम वंस अ डे। वंस अ डे ही ले रही हैं 12 mg, राइट? जी इट्स ओके मैम, आपका स्कोर भी बहुत सही आया है, इससे कम ही आएगा नेक्स्ट टाइम भी, ठीक है? देयर इज नथिंग टू वरी। वो एक्चुअली क्या है ना कि आपका 6 स्कोर है, तो आप थोड़ा योगा वगैरह कीजिए, इट विल हेल्प यू। चेस्ट पेन धीरे धीरे जाके ठीक हो जाएगा। इन केस आपको लगता है बढ़ रहा है
प्लीज कंसल्ट अस और प्लीज कंसल्ट टू योर डॉक्टर जिनसे आप मेडिसिन ले रहे हैं. ओके, थैंक यू मैम. एनी टाइम मैम. हेलो हेलो. हेलो ये मैं प्रिया बोल रही हूँ. एक्चुअली मेरी फैमिली में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है. हाँ जी तो मैम. मैम मुझे हेल्प की ज़रूरत है. एक्चुअली मुझे कंसल्टेंट नहीं मिल पा रहा है डॉक्टर से. मैम आपकी फैमिली में कोई कोविड पेशेंट है राइट? हाँ जी हाँ जी. एक्चुअली मेरे पापा 62 प्लस हैं और उनका CRP 45 अराउंड है. राकेश सर, हाँ जी मैम. can we connect her with our that institute humanity first वाला? हाँ जी मैम, मेरी ऑलरेडी इनसे चैट पे बात हो गई है. तो प्रिया मैम, पोस्ट कॉल मैं आपको कनेक्ट करा देता हूँ डायरेक्टली. तो साक्षी मैम, आप एक बार डायरेक्टली कंसल्ट करके हेल्प कर दीजिएगा. एक्चुअली मेरी मॉम और मेरी मॉम और मेरे पापा इन्फेक्टेड हैं. एंटीजन टेस्ट में मैं और मेरे पापा पॉजिटिव थे. और जो CRP टेस्ट है उसके अंदर पापा और मम्मी का CRP बढ़ा हुआ है. जो लॉन्ग वाला टेस्ट होता है उसकी मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है एक्चुअली. नो प्रॉब्लम मैम, नो इश्यू. RT-PCR बोल रहे हो मैम? हाँ जी RT-PCR. हाँ यस, RT-PCR में मेरी मम्मी का और पापा का जो है CRP बढ़ा है. नो इश्यूज मैम, हम आपको अपने साथ कनेक्ट करेंगे. मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स इन हैंड देखूंगी व्हाट्सएप पे. उसके बाद आई गेट बैक. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम. एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. इसमें हम लोग 23 तारीख से बाहर भी नहीं निकले. नो इश्यू और मैम, आई कैन अंडरस्टैंड. आई टोटली कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. देयर इज थैंक यू नथिंग टू सो वरी. मच मैम. एनी थैंक टाइम यू. मैम. थैंक यू सो एक्सक्यूज मी मच. दीप्ति मैम, मैं वंदना बोल रही हूँ. हाँ जी मैम बताइए. हेलो. हेलो. हाँ जी, मेरे बेटे ना मॉन्टेर लेता है, उसको अस्थमेटिक है, वो हाँ जी वैक्सीन मैम. लगवा सकता है क्या? हाँ जी मैम, डेफिनेटली. देयर इज नथिंग टू वरी. मैं आपको बोल रही हूँ कि जो लोग अंडर 18 है, जो लोग प्रेग्नेंट है या जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग है, बस इन्हीं तीनों को वैक्सीन नहीं लगवानी है. बाकी हर कोई वैक्सीन के लिए जाए, प्लीज जाए. वो वन क्वेश्चन है. हाँ, अंडर 18 वाले प्रोन नहीं है क्या? सपोज दैट अगर वो नहीं लगा रहे वैक्सीन, बट सॉरी सर, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर. कैन यू प्लीज स्पीक इट अगेन? मैम मैं ये कह रहा हूँ अंडर 18 आर नॉट प्रोन, क्योंकि अगर सपोज दैट कोई अबव 18 है, वो बाहर जा रहा है, वो घर में आ रहा है, अंडर 18 किड्स हैं, तो आर दे नॉट वल्नरेबल? सी सर, दे आर वल्नरेबल, बट अभी तक जो वैक्सीन डेवलप हुई है ना, उसका अंडर 18 ट्रायल नहीं हुआ. बिकॉज अंडर 18 कोई हेल्थ केयर वर्कर नहीं है. ट्रायल हम पे ही हुआ है सर, किसी और पे नहीं हुआ है. किसी नॉर्मल फैमिलीज पे नहीं हुआ है ट्रायल. एंड अंडर 18 कोई हेल्थ केयर वर्कर नहीं है. हमने हेल्थ केयर वर्कर में किसी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लगाया और किसी ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं लगाया. तो इस वजह से हमें नहीं पता है कि सर कि अंडर 18 पे और इन दोनों कैटेगरीज पे क्या इफेक्ट आएगा. इसीलिए आप जब बाहर, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि गो आउट व्हेन एंड वेयर नेसेसरी, टेक ऑल द प्रिकॉशंस. एक चीज और, कितना भी जरूरी आपको काम हो, कितना भी जरूरी आपको काम हो, आप लोगों में से कोई भी, आपका छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, आप लोग खुद हो, आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स, डजंट मैटर, खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलेंगे. एंड डोंट थिंक ये एक चाय पीने से काम चल जाएगा. प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर मील विद अ हेवी कैलोरिक डाइट. हम बोलते हैं ना, एक कहावत बोलते हैं, मेरे घर में बहुत बोलती है मेरी मम्मी बचपन से, क्योंकि हम लोग ना ब्रेकफास्ट स्किप करने की आदत थी. स्कूल जाते थे ना, भागे भागे जाते थे, छोड़ देते थे ब्रेकफास्ट. तब मेरी मम्मी बिठा के हमेशा कहती थी, मेरे पापा भी कहते हैं कि ब्रेकफास्ट अपना ऐसे करो जैसे तुम कोई राजा महाराजा हो. लंच ऐसे करो जैसे तुम कोई उनके मंत्री हो. डिनर अपना ऐसे रखो कि आप कोई साधु हो, आप कोई गरीब इंसान हो. एंड दैट इज द फैक्ट. दैट विल हेल्प टू रिड्यूस. आप यही चीज फॉलो करोगे ना सर, मैं आपको गारंटी देती हूँ, विद इन 1 month you will text in to राकेश सर और to anyone and say कि ये चीज बहुत काम आई. आपको खुद को अच्छा लगने लग जाएगा. You will be very happy because आजकल पता है हमें क्या हो गया, हम ना इतने लाइबल हो गए इन गैजेट्स पे, अपनी इन मशीन्स पे, कि हमने ना अपनी लाइफ ही इनके इर्द गिर्द बना ली है. हमें ना इनके अलावा अच्छा नहीं लगता है. अगर हमें एसी ना मिले ना, हमें गुस्सा आता है. हमें
चाहिए होता है। घर से आते, ऑफिस से आते ना, लाइट नहीं है, सारा गुस्सा जो होता है ना हाउसवाइफ के ऊपर या बच्चों के ऊपर निकलता है। दैट इज नॉट बिकॉज कि आप काम से परेशान हो, काम से आप परेशान होकर आते हो डेफिनेटली, बट हमने ना अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना लिया कि हमें ना अच्छा नहीं लगता है। सो दिस इज इट शुड बी अ हैबिट, बिकॉज द रीजन भी क्या है ना सर, जब आप खाली पेट रहते हो ना, सी रात का खाना आप मैक्सिमम कितने बजे खा लोगे? 12 बजे खा लोगे, 1 बजे खा लोगे, उसके बाद तो रेयरली कोई खाता है। सुबह आप 1 बजे रात को खाना खा रहे हो तो डेफिनेटली आपका घर से निकलने का टाइम 8-9 बजे होगा। आप, हमारी जनरेशन क्या करती है, अच्छा 8 बजे निकलना है, 7:30 उठेंगे, 10 मिनट में नहाएंगे धोएंगे, 10 मिनट में रेडी और बाहर ब्रेकफास्ट, अरे रास्ते में। वो एक्चुअली क्या होता है ना सर, कि इतनी देर तक जो टाइम पीरियड आता है ना मील्स के बीच में, उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही कम होगी ना, तो हम लोगों के ऊपर जो जितनी भी डिजीजेज हैं, सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, बाकी जितनी भी डिजीजेज हैं, हम उनके ज्यादा प्रोन हो जाएंगे। इसलिए आप कभी भी किसी डॉक्टर को देखेंगे ना, क्योंकि हमें पूरा टाइम पेशेंट से डील करना पड़ता है, हम पूरा टाइम पेशेंट्स के पास रहते हैं, हम ना कभी भी खाली पेट नहीं निकलते हैं। हम किसी भी, मतलब आप बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछिएगा ना, हम, और प्लीज स्टॉप मेकिंग अ हैबिट कि कार में जाते हुए कॉफी साइड में, आजकल हर कोई कंपनीज भी ऐसी ऐसी डिवाइसेस लॉन्च कर रही है ना कि कार में साइड में आप अपना मग रख सकते हो, स्पेशली डिजाइन फॉर कार के लिए स्पेशली डिजाइन आपका लंच बॉक्स है। हमें अच्छा लगता है, रेट भी फिजिबल लगता है, खरीद लेते हैं और उसके एक्वेंट हो जाते हैं, घर में खाना खाना भूल जाते हैं। स्टॉप डूइंग दैट। कोरोना वायरस ने ना हमारी लाइफ को ना, मतलब एक हमें सीखने को दिया है, एंड आई थिंक इस टाइम पे अगर हम नहीं सीखेंगे ना तो बहुत टफ होगा। फिर मेक योर किड्स, मेक योर ग्रैंड किड्स, जितने भी किड्स है ना, आप उनको सिखाइए कि लाइफ को ना ऐसे नहीं जीना है। आप कमा किसके रह रहे हो? अपने लिए कमा रहे हो ना, ताकि आप अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो। जब एक बात बताओ, आप खाना ही ढंग से नहीं खा पा रहे हो, बैठ के खाना खाते वक्त ही आपके पास 50 कॉल आ रहे हैं, फायदा क्या है ऐसी लाइफ का? जस्ट टेल मी दिस, कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता है। सो मेक योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री। मैं देख रही हूँ आजकल, इवन इन माई फैमिली ऑल्सो, माई मामा हैज सफर्ड फ्रॉम अ इंटरनल ब्लीडिंग इन ब्रेन। उनका इतना हाई बीपी हो गया कि ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, एंड ही इज जस्ट 34, अभी 2 months बैक। क्यों हुआ? इतना स्ट्रेस, ऑफिस स्ट्रेस। ही इज अ CEO इन ग्रूफर्स ऑफ दिल्ली NCR। इतना स्ट्रेस, क्या फायदा इतना स्ट्रेस का कि आपकी जान पे बना है? At the age of 28-29 only we are suffering from BP. हमारे great grandparents को नहीं है। My grandfather is 90. He is having no BP, no sugar. But my father is 50 and he is having BP. See,